2 of SK-20 difficult MCQs जो है SK-20 के, which is very important for your exam. So we will start directly. A 36 weeks pregnant woman with DVT develops left-sided hemiplegia. Which of the following congenital anomaly is most likely present? तो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको डीवीटी है और लेफ़्ट साइडेड हेमीप्लेजिया है, उसमें डिफेक्ट कहाँ पे होगा? सेकेंडम एएसटी, ठीक है। देन दीज आर शंट्स, एक होता है राइट टू लेफ़्ट और एक होता है लेफ़्ट टू राइट। राइट टू लेफ़्ट में डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड, लेफ़्ट टू राइट से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इसमें राइट टू लेफ़्ट में टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, लेफ़्ट टू राइट में वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। 2-year old child present with microcephaly, micrognathia, hypertelorism, palpable folds, low set ears and hypotonia, ठीक है। तो what is the karyotype? तो these are symptoms of Dye-George syndrome, ठीक है। उसमें आपको 22q11 डिलीशन मिलती है, ठीक है। फिर जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बामेज़ेपिन क्या है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉकर है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, कार्बामेज़ेपिन सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, वोल्टेज गेटेड। एक्स-लिंक्ड ए गैमा ग्लोबिनीमिया में किधर डिफेक्ट होगा? प्रो बी टू बी सेल मैचुरेशन, ठीक है। प्रो बी टू बी सेल मैचुरेशन में यू विल हैव द प्रॉब्लम। अच्छा, a runner experiences pain in the back of the knee aggravated when the knee is flexed against resistance, ठीक है। तो इसमें आपके साथ क्या होगा? बाइसेप विल बी अफेक्टेड। उसको पेन होता है इन द बैक ऑफ द नी और ये ज़्यादा होता है जब वो नी फ्लेक्स करता है, तो बाइसेप फीमोरस में मसला है। Young child having early adolescent with a prominent forehead, averted looking ears and long longitudinal mandible and hypergonadism. Which of the following is repeated sequence of triple codon in this case? तो ये केस है आपके साथ CGG और CGG आपको फ्रेजाइल एक्स में मिलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे फीचर है फ्रेजाइल एक्स के। CAG हंटिंगटन में मिलता है। CTG मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक में टी को पकड़ें तो CTG। फ्रेडरिच एटेक्सिया में आपको गा, GAA गा, ठीक है। फिर जो है उसके बाद a patient in the ward has a blood pressure reading of 180/100, intravenous furosemide was administered. What should be the next appropriate step in management? तो उसमें you have to observe the patient, you have to observe the patient। उसका ब्लड प्रेशर रीडिंग 180/100 है, IV फ्यूरोसमाइड उसको दिया है, ठीक है। तो उसमें आपने नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट में क्या करना है? उसको आपने ऑब्ज़र्व करना है, कोई भी ड्रग्स वगैरह फ़िलहाल नहीं शुरू करनी, ठीक है। क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि आपने यू हैव टू वेट फॉर 3 months, यू हैव टू ऑब्ज़र्व द पेशेंट फॉर एटलीस्ट 3 months। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन एट्रियल फिब्रिलेशन? तो एट्रियल फिब्रिलेशन में आप देते हो प्रोपेनोलॉल। एट्रियल फिब्रिलेशन में यू गिव प्रोपेनोलॉल। 35-year-old man present with progressive muscle weakness, fatigue and occasional muscle cramps. On lab investigation, he has electrolyte imbalance. Which of the following is the most likely underlying cause? Progressive muscle weakness है, fatigue है और muscle cramps भी होते हैं उसको। तो muscle cramps आपको हाइपोकिलीमिया में नज़र आते हैं, ठीक है। muscle stiff हो जाता है हाइपोकिलीमिया में, cramps आपको नज़र आएंगे, ठीक है। Leptin acts on its receptor to mediate its effect. What is the mechanism of action and what type of receptor change occurs? तो leptin जो है वो है enzyme linked receptor। Leptin is enzyme linked receptor। Leptin is enzyme linked receptor, ठीक है। अच्छा, फिर a 25-year-old patient presented with symptoms of allergic rhinitis including sneezing, nasal congestion and postnasal drip. Which of the following nuclei receive the sensory input related to these symptoms?
तो इसमें स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, 25-year-old patient, allergic rhinitis, sneezing, nasal congestion, post-nasal drip, to spinal trigeminal nucleus. Erythropoiesis is ineffective in which of the following? Beta thalassemia में it is ineffective. Which of the following is management of a woman with symptoms of DIC? HB is 9, PT and APTT are raised, ठीक है, and decrease platelets. तो PT भी ज़्यादा है, APTT भी ज़्यादा है, ठीक है, platelets भी आपके साथ कम है, ठीक है. तो these are the symptoms of DIC. तो इसमें आप पहले क्या दोगे? FFP, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, ठीक है. तो जिस वुमेन या कोई पेशेंट को DIC होगा तो उसमें आपने फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देना है. फर्स्ट पास मेटाबॉलिक अफेक्ट कैन बी अवॉइडेड थ्रू विच रूट? सबलिंगुअल दोगे तो इसका सीक्वेंस है सबसे पहले IV, फिर सबलिंगुअल, फिर इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबलिंगुअल, इंट्रामस्कुलर. तो उस पर आप फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर सकते हो. Which of the following is activated in the lung? तो एंजियोटेंसिन 1 जो है 2 को कन्वर्ट होता है इन द लंग और वहाँ पे जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, is converted into 2 in lung while angiotensin 2 is activated in the lung. तो ये एक्टिवेट होता है लंग में. फिर which type of antibodies are present in DM type 1? तो डायबिटीज़ टाइप 1 में आपको कौन से एंटीबॉडीज़ मिलेंगे? एंटी-गैड एंटीबॉडीज़, एंटी-गैड एंटीबॉडीज़, DM टाइप 1, एंटी-गैड. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायज़ेपाम क्या है? तो इसमें गाबा अल्फ़ा रिसेप्टर को ये इन्हांस करेगा. डायज़ेपाम विल इन्हांस गाबा अल्फ़ा रिसेप्टर, गाबा अल्फ़ा रिसेप्टर को इन्हांस करेगा. It is not involved in the inhibition of GABA receptor. It is not involved in the inhibition of sodium voltage gated channels. Stimulation भी नहीं करता, sodium inhibition of T calcium भी नहीं करता. तो GABA alpha को आपने याद रखना है, GABA alpha diazepam. In electron transport chain, entamycin A inhibits which enzyme? तो entamycin आपके साथ जो है साइटोक्रोम BC1 को जो है कम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है, साइटोक्रोम BC1 को इनहिबिट करेगा, ठीक है. कम्प्लेक्स 1 में रोटिनोन है, ठीक है, और एंटामाइसिन जो है इट इनहिबिट्स कम्प्लेक्स 3. साइनाइड पॉजिंग में फिर कम्प्लेक्स 4 है. Which of the following is most important property of IgM? तो IgM की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? कि इट रिलीजेस अर्ली इन इन्फेक्शन. IgM सबसे पहले M फॉर मेगा, ये सबसे मोटा भी होगा, ठीक है, और इट रिलीजेस अर्ली इन इन्फेक्शन. फिर इसके बाद IgG है, फिर IgG 3, 1, 2, 4, ठीक है. तो इस सीक्वेंस से याद करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्सक्रीटेड विदाउट सिग्निफिकेंट बायोट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉडी? तो कौन सा ऐसा ड्रग है जो एक्सक्रीट होता है विदाउट सिग्निफिकेंट बायोट्रांसफॉर्मेशन? उसमें आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है. सिग्निफिकेंट बायोट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉडी, स्ट्रेप्टोमाइसिन. 6-year-old boy was presented in OPD with complaint of excessive eating and rapid weight gain. Over the past year on examination, he is obese with short stature, small hands and feet, and almond-shaped eyes. He has also mild intellectual disability and behavior issues. Which of the following you are suspecting in this child? तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बिहेवियर इश्यूज़ आपको प्राडर-विलाय में मिलते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है हाइपरफेजिया भी इसका एक टिपिकल फीचर है. हाइपरफेजिया वगैरह आ जाए तो आपने क्या लिखना है? क्रोमोसोम 15 पे होता है प्राडर-विलाय सिंड्रोम. 25-year-old male with no known comorbidities present in OPD with complaint of fever, productive cough and pleuritic chest pain. Chest X-ray confirms right lower lobe pneumonia. Which of the following is the most appropriate outpatient treatment?
तो अगर एक पेशेंट को राइट लोअर लोब में नमूनिया है तो यू शुड गिव पेनिसिलिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, राइट लोअर लोब नमूनिया है, गिव पेनिसिलिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन। एक्सरे पे आपको बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आते हैं विच आर सजेस्टिव ऑफ नमूनिया, तो उसमें आपने क्या देना है, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, अगर आपने एक पेशेंट को नमूनिया है, चेस्ट एक्सरे पे बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स हैं, सो यू शुड गिव एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन आपने देना है। फिर इसके बाद आता है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन कैन ऑकर ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। तो जब सक्रेस की डिफिशिएंसी होगी तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हेन एसिडिक काइम enters the duodenum from stomach, which of the following hormone is released in response। तो जब एसिडिक काइम इंटर हो जाता है ड्यूडेनम में स्टमक से तो इसमें सेक्रेटिन ज़्यादा होगा। Which of the following genetic element is capable of moving from one location to another within the genome and may carry functionally important genes। तो ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह विद इन द जीन बाय ट्रांसपोसन्स। ठीक है, 35-year-old male patient present in OPD with persistent burning and lancinating pain in the upper face following an episode of vascular eruption on the medial side of the eye and lateral aspect of nose. The pain is severe, exacerbated by light touch, and follows a dermatomal distribution. The patient reports a prior history of herpes zoster infection in the region which nerve is most likely involved। तो इसमें क्या होगा, इसमें है ऑफ्थेल्मिक, बड़ा वाला सिनेरियो है, 35 ईयर मेल पेशेंट है, उसको जो है बर्निंग और लेसिनेटिंग पेन है और वेस्कुलर इरप्शंस वगैरह हुई हैं। ठीक है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नोज़ और इन जगहों पे भी पेन है और डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन है पेशेंट की, हर्पीज ज़ूस्टर इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, तो ऑप्थेल्मिक वेन विल बी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिफिशिएंसी ऑकर इन मैपल सिरप यूरिन डिजीज़। तो मैपल सिरप यूरिन में ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, प्योर रट्टा, मैपल सिरप में ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। इन माइट्रल सिनोसिस ईसीजी शोज, तो इसमें पी माइट्रेल इन लीड 2 इज़ ग्रेटर देन बाईफेजिक पी वेव इन लीड 2, तो पी माइट्रेल आपने पहले लिखना है लीड 2 में। A middle-aged woman was diagnosed with moderately differentiated adenocarcinoma of the stomach and she had a history of biopsy few years ago that showed pre-malignant condition। middle-aged woman है, moderately differentiated adenocarcinoma है stomach का और history of biopsy few years ago, तो कोई ऐसा केस था जिसके लिए बायोप्सी हुई थी, प्री मेलिग्नेंट कंडीशन थी, दैट वाज एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। मैं आप लोगों को आंसर सिर्फ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसको आपने बार बार करना है। ठीक है, पहले सेकंड टाइम पे आप जो है आपने इसको ऑलरेडी या किया होगा या आपने इसको करना होगा, फिर आप आंसर छुपा लो, लेकिन पहले इस तरह कर लो ताकि आंसर आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा जो आंसर आपके माइंड में बैठ जाता है फिर आप बहुत कोशिश करोगे, वो बहुत डिफ़िकल्टी से फिर वो चेंज होता है आपके माइंड से। तो ये प्योर रट्टा है, आपने इस पर सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाना है क्योंकि पास्ट MCQs हैं, इनसे कोई भी आपने गलत नहीं करना। द सेंसेशन ऑफ रेक्टम डिस्टेंशन इज़ कैरीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। रेक्टम डिस्टेंशन जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, रेक्टम की डिस्टेंशन। एस्थमा इज़ डायग्नोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एस्थमा को हम स्पायरोमीट्री से जो है डायग्नोज करते हैं। पेशेंट हैड चेस्ट पेन, डाइड आफ्टर 24 आवर्स आफ्टर MI, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेथ। तो इसमें क्या हुआ है, 24 आवर्स के में बंदे को जो है
कार्डिक एरिथमियाज होती हैं। 2 to 3 days में पेरिकार्डाइटिस, 3 to 7 days में उसको फिर 3 to 7 है कि 4 to 7 है, उसमें बंदे को फिर पेरिकार्डाइटिस होता है। 14 डे पे बंदे को ड्रेसलर सिंड्रोम होता है, ठीक है। विदिन 24 आवर उसको एरिथमियाज होते हैं। A young boy presented with painless testicular tumor after histopathology. Radiotherapy was decided. Which of the following testicular tumor boy is suffering from? ठीक है, तो टेस्टिकुलर ट्यूमर है, यंग एज है, तो इसमें सेमिनोमा। जब भी यंग एज आएगा तो उसमें सेमिनोमा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फार्माकोकाइनेटिक टू कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड ऑफ अ ड्रग? ठीक है, तो यूज़ ऑफ फार्माकोकाइनेटिक में थ्रेशोल्ड ऑफ अ ड्रग के लिए यू यूज़ द थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। ऑप्शन बी। A man is traveling in a bus. Suddenly bus stopped, but person does not lose his balance because of which of the following? तो इसमें आंसर आपका है ऑप्शन बी, यूट्रिकल। की गलत है। ऑप्शन बी, जब बस में सफ़र करता है इट इज़ लीनियर मोमेंटम या लीनियर मूवमेंट, उसमें यूट्रिकल इज़ यूज़। एलिवेटर में फिर जो है आप सेक्यूल यूज़ करते हो, और वो सर्कुलर मोशन में आपने सेमी सर्कुलर कैनाल यूज़ करना है, चूज़ करना है। Patient present with left nasal and right temporal vision loss as well as difficulty in medial rotation of the left eye. Neurological examination suggests a potential lesion affecting a specific structure in the brain. Based on clinical finding, which structure is most likely involved in this patient's condition? तो ये क्या है? ये है लेफ्ट जेनिकुलेट बॉडी, लेफ्ट जेनिकुलेट बॉडी। लेफ्ट नेज़ल और राइट टेम्पोरल विजन लॉस है, मीडियल रोटेशन ऑफ आई में मसला आ रहा है, ठीक है, और लीजन है इन द ब्रेन, तो ये आपके साथ लेफ्ट जेनिकुलेट बॉडी इसमें अफेक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपिथेलियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब? सिंपल कोलमनर सिलिएटेड। तो जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा SCC लिखता है, तो फिलियोपियन ट्यूब में भी आपने SCC याद रखना है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या सिंपल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। A known case of HCV patient presented in OPD with lower limb edema and ascites. An ascitic tap is performed which shows an increased cell count and SAG value of 1.1. The most likely cause of ascites in this patient is, तो इसमें क्या है? लिवर सिरोसिस है, ठीक है। HCV पेशेंट है, OPD में लोअर लिम्ब एडेमा और एसाइटिस के साथ आया है, एसेटिक टैप में इंक्रीज सेल काउंट है और सैग वैल्यू उसकी ज़्यादा है, तो दिस इज़ लिवर सिरोसिस। विच रिंग स्ट्रक्चर इज़ कॉमन टू बोथ बेंजोडाइज़ेपिन एंड फ्लूमेज़निल? तो इन दोनों में जो है बेंजीन रिंग होता है, बेंजोडाइज़ेपिन और फ्लूमेज़निल में बेंजीन रिंग होता है। In a patient with ventricular pre-excitation where the AV node is bypassed, what is the most likely finding on ECG? तो most likely finding on ECG में आपको short PR interval मिलेगा, ठीक है, short PR interval. A female patient presented in gynae OPD for contraception. She has history of DVT and has experienced 2 episodes of pulmonary embolism. तो इसमें कौन सा जो है कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? सो यू विल नॉट गिव कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, COCP, ठीक है। 10 ईयर ओल्ड, अच्छा इसमें COCP किस वजह से आप देते हैं? क्योंकि उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यू कैन नॉट गिव COCPs, दिस इज़ द मेन पॉइंट। DVT है, ठीक है, और pulmonary embolism, तो you don't have to give COCPs. A 10-year-old child presented with generalized body swelling and periorbital edema. Urine analysis shows massive proteinuria, तो minimal change disease diagnose हुआ। histology पे pink droplets हैं, seen in being in, और वो जो है engulfed by cytoplasm of PCT। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पिंक मटीरियल? तो पिंक मटीरियल आपके साथ होगा प्रोटीन।
68-year-old male presents with progressive unsteadiness while walking, urinary incontinence, and memory loss for the past few months. Neurological examination reveals a wide-based gait. Which of the following is your diagnosis? ठीक है, अनस्टडी है while walking, urinary incompetence है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकली वाइड बेस्ड गेट है उसका, तो ये है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में आपको 3 W's मिलेंगे। वॉबली, वैकी, वेट। वॉबली मतलब डिमेंशिया, वैकी मतलब उसको गेट में प्रॉब्लम्स होंगी, वेट का मतलब है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा। वॉबली मतलब वो कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कोई दिमागी प्रॉब्लम है। सो डिमेंशिया, गेट एप्रेक्सिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये आपको नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में मिलते हैं। 68-year-old male patient present with progressive unsteadiness while walking, urinary incontinence, and memory loss for the past few months. Neurological examination reveal a wide-based gait. Which of the following is your diagnosis? Same चीज़ है, normal pressure hydrocephalus. Which of the following decrease at the apex of the lung compared to the base? ठीक है, तो डिक्रीज एपिक्स पे आपके साथ 3 चीज़ें इंक्रीज होती हैं। ठीक है, एक होता है ब्लड फ्लो, एक होता है वेंटिलेशन, और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो BvCO2 मैंने इस तरह याद किया, BvCO2 ये एपिक्स पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी परफ्यूजन जो है वो आपके साथ एपिक्स पे कम होगा। ठीक है, मैंने बता दिया कि ये 3 चीज़ें आपके साथ ज़्यादा होंगी। ठीक है, और इनमें उसके अलावा वेंटिलेशन इसमें ज़्यादा होगा, तो परफ्यूजन इसका ऑपोजिट है। परफ्यूजन जो है वो आपके साथ एपेक्स पे ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉरी, डिक्रीज एट द, हाँ, एपेक्स पे आपके साथ परफ्यूजन ज़्यादा होगी और बेस पे वो जो है कम होती है। अच्छा, कैटलेस टेस्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो स्टेफाइलोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकस से। कैटलेस टेस्ट में यू डिफरेंशिएट स्टेफ फ्रॉम स्ट्रेप, स्टेफ फ्रॉम स्ट्रेप, कैटलेस पॉजिटिव फ्रॉम कैटलेस नेगेटिव। कोगुलेस टेस्ट में क्या करते हो कि आप स्टेफ ओरियस को फ्रॉम अदर स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़, तो स्टेफ को विद इन अपने अंदर ही वो डिफरेंशिएट करता है, लाइक स्टेफ ओरियस को स्टेफ एपिडर्माइटिस में, सेप्रोफिटिकस में। ठीक है, तो ये आप कोगुलेज इसके लिए करते हो कि स्टेफ फ्रॉम स्टेफ, कैटलेज आप करते हो स्टेफ फ्रॉम स्ट्रेप। ठीक है, तो कैटलेज पॉजिटिव फ्रॉम कैटलेज नेगेटिव इन कैटलेज टेस्ट। कोगुलेज टेस्ट में स्टेफ ओरियस फ्रॉम अदर species. A patient presented an ENT OPD with right conductive hearing loss. He also complains of similar condition 3 years back. During that time, he has severe right ear pain, which was settled by itself after tympanic membrane rupture. ठीक है, now he presents again with right conductive hearing loss. तो अच्छा, इसको पहले जो है ENT OPD में उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हुई है। ठीक है, और ये चीज़ उसको पहले भी 3 साल पहले हुई है। ठीक है, तो ये क्रॉनिक सबप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया जो होता है, जब वो इनएक्टिव होता है, वो स्लोली आपके ईयर में परफोरेशंस कॉज करता है एंड इट कैन कॉज सिम्टम्स एट लेटर स्टेजेस एज वेल इफ़ इट इज़ नॉट हील्ड प्रॉपरली। अगर हील हो जाए दैन इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर ये प्रॉपरली हील नहीं हो जाता तो वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है और वो आपको लाइफ में फिर बाद में भी आ सकता है। ठीक है, सो फॉर टुडे दिस वाज इनफ एंड आई होप यू गाइज लर्नड अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम हेयर। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल और ये MCQs की समझ आ रही है, आपको इससे याद हो रहा है, so that's really good, and please follow and subscribe and share with your friends for more similar content. Thank you.